Welcome, my dear students, to another session on time, speed, and distance. If you have not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADI TYAKT. My name is Adit Kumar Tiwari, and let us start the session. Question number 1. Rahul and Pratik started running towards each other at a certain time from points P and Q with respective speeds being 19 and 15 km per hour respectively. So when they meet each other, Rahul had covered a 260 meters more distance as compared to Pratik. So we have to find the distance PQ. Rahul or Pratik, they started running towards each other at a certain time from points P and Q. Okay, so let us say this is point P and this is point Q. So Rahul is starting from point P and Pratik is starting from point Q. And they both started at the same time. Their respective speeds are 19 km per hour and 15 km per hour. After some time, they will be catching up. They will be crossing each other. Let us say this is that location when they are crossing each other. Okay. The question is saying when they meet each other, Rahul had covered 260 meters more distance as compared to Pratik. अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले देखना है what is constant in this scenario. If there is something that is constant, definitely their speeds are different. Okay, speeds तो different है, distance covered भी different है, but time they started at the same time and they are crossing each other, which implies कि the total time taken है during the journey that is same for both of them. So time is same in this context. Time is same, and if time is same, तो distance और speed will be proportional. जो रेशियो हमारा स्पीड का होगा, स्पीड रेशियो विल बी इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो, और स्पीड का रेशियो में गिवन है राहुल और प्रतीक का. देयर स्पीड्स आर 19 एंड 15 रिस्पेक्टिवली. तो रेशियो है स्पीड का 19:15. सेम रेशियो विल बी फॉर डिस्टेंस 19:15. ओके, तो 19 मिनट्स डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा राहुल ने, 15 मिनट्स डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा प्रतीक ने. डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 4 यूनिट्स, और क्वेश्चन हमें इस 4 यूनिट्स की वैल्यू ही दे रहा है कि 4 यूनिट इज इक्वल टू 260 मीटर्स. 4 यूनिट्स हमारा बराबर है 260 मीटर्स के. और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड PQ क्या है? PQ अल्टीमेटली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राहुल एंड दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रतीक. और दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस हमें PQ मिल जाएगा. तो PQ इज 19 + 15, 34 यूनिट्स. एंड इफ 4 यूनिट्स इज 260, तो 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 65 मीटर्स. तो 34 यूनिट्स विल बी इक्वल टू total distance covered PQ is 34 units and that will be equal to 34 into 65. So 65 into 4 260, 26 बच गया, और 195 and 26, तो that will be 221, 2210 meters. That will be the total distance PQ. Option B. Is that part clear? ठीक है, option B will be the answer. Next question. A policeman chases a thief. The speed of the policeman and the thief are 8 km per hour and 6 km per hour respectively. If the policeman started 10 minutes late, at what distance will he catch the thief? The question is trying to say कि thief और policeman ने thief को देखा, thief ने भागना शुरू किया obviously policeman से opposite direction में, यानी कि उससे दूर भागना शुरू किया. Okay, और policeman ने start किया है 10 minutes late, which implies कि इस question में क्या कहना चाह रहा है कि एक टाइम पे policeman और thief जैसे कि साथ में ही थे, ठीक है, और thief 10 मिनट्स तक अकेले भागता रहा. ठीक है, थीफ 10 मिनट्स तक अकेले भागता रहा, और उसी से डिस्टेंस आ गया पुलिसमैन और थीफ के बीच में. पुलिसमैन स्टार्टेड, द पुलिस ऑफिशियल स्टार्टेड 10 मिनट्स लेट. तो व्हाट टाइम ही विल बी कैचिंग अ थीफ? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन बिफोर कैचिंग द थीफ? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. ओके, so let us say the thief started at this position and in 10 minutes he covered this particular distance. ठीक है, so after 10 minutes thief is here. ठीक है, so this is the thief. और पुलिसमैन ने अब स्टार्ट किया है, तो पुलिसमैन भी यहीं पे है, बट उसने अब स्टार्ट किया है चेज करना. तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा? इनिशियल एडवांटेज जो कि थीप को मिल जाएगा, बिकॉज स्पीड किसकी ज्यादा है? स्पीड पुलिसमैन की ज्यादा है, तो पुलिसमैन कैच तो कर देगा थीप को, बट जो एडवांटेज मिला है इसकी वजह से ही विल बी टेकिंग टाइम. ओके, तो 10 मिनट्स में कवर्ड डिस्टेंस कितना होगा थीप के द्वारा? स्पीड ऑफ थीप इज 6 km per hour. So in 10 minutes we will be covering distance 10 by 60 hour multiplied by 6, which is 1 kilometer.
which is 1 second. 10 minutes में, हाँ 10/60, so that distance is 1 kilometer. Okay, distance covered is 1 kilometer. क्या है, पार्ट क्लियर है? ठीक है. देन अब थीफ भाग रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड पुलिस मैन इज ट्राइंग टू कैच हिम विद a speed of 8 kilometer per hour. So after some time, it is sure that policeman will be able to catch the thief. Isn't it so? ठीक है, थोड़ा सा अपवर्ड्स स्लोपिंग बन गया पर बात समझ गए होगे. ठीक है, थोड़ा हिली टेरेन है शायद. तो पुलिसमैन थीफ को थोड़े टाइम के बाद में पकड़ लेगा. Isn't it so? बट वो कितना टाइम होगा ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है. हमारे लिए रेलेवेंट क्या है इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर विच द पुलिसमैन कैचेस द थीफ. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग एट व्हाट डिस्टेंस विल ही कैच द थीफ, ही हु, पुलिसमैन. तो पुलिसमैन का डिस्टेंस हमें बताना है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन विल बी दिस डिस्टेंस, दिस टोटल डिस्टेंस. ठीक है, अब इस इंस्टेंट पे ऑब्जर्व करो, जब पुलिसमैन इज एट दिस पोजीशन एंड थीफ इज एट दिस पोजीशन, तब पुलिसमैन स्टार्ट कर रहा है. तो टाइम ट्रैवलिंग का सेम है दोनों के लिए, थीफ के लिए और पुलिसमैन के लिए. आफ्टर दिस इंस्टेंट टाइम सेम है, जब कैच करेगा तब तक. ठीक है, तो टाइम इज सेम, एंड इफ टाइम इज सेम तो डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड. डिस्टेंस हमारा स्पीड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा बिकॉज टाइम सेम है. स्पीड गिवन है हमको, स्पीड गिवन है. स्पीड का रेशियो क्या है पुलिसमैन का और थीफ का? 8 and 6, यानी कि 4:3 का रेशियो है. सेम रेशियो आ जाएगा डिस्टेंस का भी, तो डिस्टेंस का रेशियो विल आल्सो बी इक्वल टू 4:3. बट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इज दिस ओनली. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. तो दिस 1 यूनिट, दिस विल बी इक्वल टू, कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1 किलोमीटर का. थीफ ने 10 मिनट्स में कवर किया था, तो दैट वाज द गैप. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर्स. So distance covered by policeman will be 4 units and hence equal to 4 kilometers. A very easy question. Option D is the answer. 4 kilometers will be the answer. Is that clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट वन, a thief saw a policeman from a distance of 550 meters and started running in the opposite direction. Thief can run 5.9 kilometer distance in 48 minutes, while policeman can run the same distance in just 37 minutes. So you have to find the distance the thief had run before being caught. So again, let us say this is the policeman and this is thief, and the initial distance between them is also given in this case, and that is 550 meters. और जैसे ही thief देखेगा पुलिसमैन को, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा. पुलिसमैन की तरफ थोड़ी भागेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा. ठीक है, एंड देन थीफ का स्पीड हमें गिवन नहीं है, बट वी नो दैट थीफ कैन रन 5.9 किलोमीटर डिस्टेंस इन 48 मिनट्स. अब यहाँ से थीफ की स्पीड नहीं निकालने लग जाना है. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अदरवाइज स्पीड निकालते ही रह जाओगे, अननेसेसरी कैलकुलेशन में हो जाओगे. थीफ कैन रन 5.9 किलोमीटर डिस्टेंस इन 48 मिनट्स, व्हाइल पुलिसमैन कैन रन द सेम डिस्टेंस इन जस्ट 37 मिनट्स. हमारा पर्पज अल्टीमेटली क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस द थीफ हैड रन बिफोर बीइंग कॉट. तो इस क्वेश्चन में हमें पुलिसमैन का डिस्टेंस नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें थीफ का डिस्टेंस चाहिए कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस. लेट अस से दिस इज इक्वल टू डी. ओके, सबसे पहले स्पीड तो देखना पड़ेगा ना. तो थीफ और पुलिसमैन के बारे में हमें क्या दिया? दे बोथ कैन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस. 5.9 किलोमीटर का डिस्टेंस है विच बोथ आर ट्रेवलिंग, बट थीफ इज ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस इन 48 मिनट्स व्हाइल पुलिसमैन इज ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस इन 37 मिनट्स. सेम डिस्टेंस है. अगर डिस्टेंस सेम है, सिर्फ और सिर्फ अभी इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस लाइन. So as per this line, the distance is same. 5.9 किलोमीटर. बट टाइम का अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. टाइम की वैल्यू हमें गिवन है, टाइम टेकन बाय थीफ, थीफ का टाइम टेकन एंड पुलिसमैन का टाइम टेकन. थीफ हैज टेकन 48 मिनट्स, पुलिसमैन इज टेकिंग 37 मिनट्स. तो 48 और 37 का रेशियो है टाइम का, तो स्पीड का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, 37:48. डायरेक्टली तुम यही लाइन लिखोगे स्पीड के रेशियो की. ठीक है, ये सारी बातें मैंने समझाने को लिखी, बट तुमको अल्टीमेटली यही लाइन लिखना है स्ट्रेट अवे कि स्पीड का रेशियो होगा थीफ और पुलिसमैन का 37:48. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, नाउ कमिंग टू द सिनेरियो व्हेन दे आर रनिंग. ओके, व्हेन द पुलिसमैन इज चेजिंग द थीफ. तो इस सिनेरियो में वी नो कि टाइम इज कांस्टेंट, टाइम सेम है दोनों के लिए, एंड इफ टाइम इज सेम तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड. और स्पीड का रेशियो तो पता है हमको थीफ का और पुलिसमैन का. स्पीड का रेशियो है 37:48 का.
तो यही सेम डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 37:48 का। और हमें पता है कि द गैप बिटवीन पुलिसमैन एंड थीफ दैट इज 550 मीटर्स। तो दिस गैप बिटवीन देम 37 एंड 48 11 यूनिट्स का गैप है, एंड दिस 11 यूनिट्स का गैप इज इक्वल टू 550 मीटर्स। तो 1 यूनिट का गैप आ जाएगा हमारा 50 मीटर्स के बराबर। 1 unit is equal to 50 meters. Question is asking distance the thief had run before being caught. और thief ने total distance कितना रन किया? 37 units. So 37 into 50. Answer will be 1850 meters. पुलिसमैन का पूछा तो 48 into 50 करते, आंसर होता 2400 meters. बट क्वेश्चन ने पूछा है thief का, तो आंसर होगा 1850 meters. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी will be the answer in this case. Clear? Next question. Sansa and Arya, they started running simultaneously from point P to Q, and their respective speeds are in the ratio 5:7. So they both have started from the same point. Point P से PQ की तरफ जा रहे हैं दोनों ही, Sansa as well as Arya. Their speeds are different, and speeds are in the ratio 5:7. On reaching Q, Arya takes a U-turn. Arya की स्पीड ज्यादा थी obviously, तो Arya पहले पहुंचेगी. So Arya after reaching Q takes a U-turn, comes back and starts her journey back to P. And after some time, she meets Sansa at a point R. She is catching up with Sansa at point R. If the meeting point is at a distance of 750 meters from point P, then we have to find the total distance PQ. Okay. तो डायग्राम बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में प्रॉपर्ली. So let us say this is P and this is Q. Okay. तो स्पीड का रेशियो क्या गिवन है? सांसा और आर्या का स्पीड का रेशियो हमें गिवन है, दैट इज 5:7. सिंस द बोथ आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली, और फिर जब तक वो मिल नहीं जाते हैं तब तक क्या है, सेम टाइम है, टाइम सेम होगा, इजंट इट सो? बिकॉज स्टार्ट भी साथ में किया है और एंड में, एंड यानी कि जहां पे कि वो दे आर कैचिंग अप, दे आर मीटिंग, वहां भी सेम है, सेम टाइम है. तो सेम टाइम है, टाइम इज सेम, और अगर टाइम इज सेम तो स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गए. इफ टाइम इज सेम, स्पीड एंड डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल. तो डिस्टेंस का रेशियो भी होगा 5:7 ही. इजंट इट सो? डिस्टेंस का रेशियो भी 5:7 ही होगा. अब डायग्राम के हिसाब से आर्या reached from P to Q, okay, and after reaching Q, she takes a U-turn. तो U-turn ले रही है, चलो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है. She is coming back, and at the same time, Sansa catches up with her at the point R. This is point R, and this is the point where they are meeting. Okay, their speeds are in the ratio 5:7. तो डिस्टेंस ट्रेवल भी 5:7 के ही रेशियो में होगा, which implies कि अगर सांसा का ट्रेवल डिस्टेंस 5 यूनिट्स होगा, if this distance is 5 units, this distance is 5 units, so this total distance will be 7 units. Distance traveled by Arya will be 7 units. और हमको पता है कि ये डिस्टेंस तो 5 है. By this distance is 5 units. बिकॉज सांसा ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस है, 5 यूनिट्स डिस्टेंस होगा. तो बचा हुआ डिस्टेंस जो है, विच आर्या हैज गॉन एज वेल एज केम बैक, तो दैट डिस्टेंस टोटल विल बी 2 यूनिट्स. ठीक है, तो टोटल 2 यूनिट्स है, तो दिस विल बी 1 यूनिट, दिस विल ऑल्सो बी 1 यूनिट. ठीक है, और ये जो टर्न का देख रहे हो, ये तो बस डायग्राम बनाने के लिए लिखा है, ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ी किया है. ठीक है, जस्ट टर्न ले लिया है. तो 5 यूनिट्स तो हो गया पहले, और फिर बाद में 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, 2 यूनिट्स टोटल एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है आर्या ने. टोटल 7 यूनिट्स ट्रेवल किया है. क्या है पार्ट क्लियर है? क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि द मीटिंग पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट पी. पॉइंट पी से 750 मीटर्स की डिस्टेंस पे है मीटिंग पॉइंट. तो 5 यूनिट्स डिस्टेंस इज इक्वल टू 750 मीटर्स. 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 750 मीटर्स. और पी क्यू हमारा कितना है? पी क्यू इज 5 + 1, 5 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट. भाई पी आर हमारा 5 यूनिट्स है और आर क्यू 1 यूनिट है. पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू. तो टोटल 6 यूनिट्स है. अगर 5 यूनिट है 750, तो 1 यूनिट आ जाएगा 150 मीटर्स, एंड हेंस 6 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 6 × 150, 900 meters. So the distance PQ is 900 meters. If the question instead asked distance traveled by Arya, तो distance traveled by Arya will be 7 units, यानी कि 1050 meters. Distance traveled by Arya will be 7 units, which is 1050 meters. और सांसा की तो गिवन ही है 750 meters.
इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कार ओवरटेक्स. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया, रह गया. देखो, जब भी कभी ऐसा केस होगा कि अ पर्सन, दो पर्सन का हमें स्पीड गिवन है और दोनों जा रहे हैं, ठीक है, वन पर्सन वेंट एंड देन केम बैक एंड देन दे बोथ कॉट अप. इन एनी सच केस, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, डिस्टेंस ट्रेवल बाई आर्या इज 1050 मीटर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई सांसा इज 750 मीटर्स. अगर हम दोनों की डिस्टेंस को एड अप कर लें तो 1050 प्लस 750 दैट इज 1800 मीटर्स. और डायग्राम से भी देखोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है, पीक्यू का जस्ट डबल है, पीक्यू का जस्ट डबल है, isn't it so? So this is equal to 2 times PQ. क्या बात समझ पा रहे हो कि 1800 मीटर्स विल बी 2 टाइम्स PQ, so PQ विल बी 900 मीटर्स. ऐसे भी देख सकते थे. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कार ओवरटेक्स एन ऑटो एट विलेज अरिका एट 9 AM. द कार रीचेस द विलेज बतीसा at 11 AM and immediately turns back. It again meets the auto at village Chalki at 11:30 AM. At what time will the auto reach Batisa? Okay, so car is overtaking auto at village Arika at 9 AM. So let us say this is village Arika at 9 AM. Car is overtaking auto. ठीक है, तो यहाँ पे car will cross auto. And then car reaches village Batisa at 11 AM and immediately turns back. So car is reaching Batisa at 11 AM and then it turns back. While it again meets the auto at village Chalki at 11:30. तो ऑटो तो जा ही रहा है अभी, स्लो है ऑटो. ओके, सो लेट अस से दिस इज विलेज चालकी वेयर दे आर कैचिंग अप एंड द टाइम व्हेन दे आर कैचिंग अप दैट इज 11:30 AM. और तो कुछ दिया नहीं, सिर्फ टाइम दिया है, टाइम की वैल्यूज गिवन है, तो हमें टाइम का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. और अल्टीमेटली क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, टाइम ही पूछा है. तो 9 AM पे द कार ओवरटुक ऑटो एंड देन एट 11 AM इट रीच्ड बतीसा, विलेज बतीसा. ठीक है, सो टोटल अगर AB डिस्टेंस की बात करें, दिस AB डिस्टेंस, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज आस्किंग, द क्वेश्चन इज आस्किंग एट व्हाट टाइम विल द ऑटो रीच विलेज बतीसा. ठीक है, विलेज बी बतीसा. तो टोटल 2 hours में द कार इज ट्रैवलिंग द टोटल डिस्टेंस AB. Isn't it so? Car is traveling the total distance AB in 2 hours, and then car is coming from B to C and it is taking 30 minutes और 1/2 hour. अब कार का स्पीड तो कांस्टेंट होगा जाते समय भी और जब लौट के आ रही तब भी. तो स्पीड फॉर कार इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस, सेम इन बोथ केसेस. Isn't it so? और अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इन प्रोपोर्शनल टाइम. If speed is constant, तो distance will be proportional to time. Okay, तो first case में distance traveled AB में क्या है, in stretch AB the time taken by car is 120 minutes, while in stretch BC time taken by car is 30 minutes. तो time का रेशियो आ रहा है 4:1 का, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा 4:1 का. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? यानी कि AB और BC डिस्टेंस का रेशियो 4:1 होगा, which implies कि if BC distance is 1 unit, if BC distance is 1 unit, this total distance from A to B, that is 4 units, and hence AC distance will be 3 units because AC plus CB is AB. क्या ये पार्ट क्लियर है कि टोटल AB डिस्टेंस हमारा 4 यूनिट्स है और BC 1 यूनिट है, सो AC will be 3 units. Isn't it so? And auto has traveled, अब ऑटो के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ऑटो हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम A to C AC डिस्टेंस in how much time? From 9 AM to 11:30 AM. तो ऑटो हैज ट्रेवल्ड दिस AC डिस्टेंस which is 3 units distance in 2 hours and 30 minutes, यानी कि 150 minutes में. and if it has traveled 3 units in 150 minutes, so 1 unit travel करेगी 50 minutes में. और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा है, 1 unit ही तो बचा है. CB डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगेगा इसको, which is 1 unit डिस्टेंस, 50 minutes का टाइम लगेगा. 50 minutes extra it will be taking before reaching Batisa. So total time will be 11:30 AM plus 50 minutes, which will be 12:20 PM. Option C. Answer will be option C. Clear? ठीक है. So in every question we only have to focus on कि what is constant in that particular scenario. Questions को ध्यान से पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज को पढ़ने के बाद में we have to try to identify. कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जहाँ पे कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे. बट इन मोस्ट केसेस इधर द टाइम इज कांस्टेंट और स्पीड इज कांस्टेंट और डिस्टेंस इज कांस्टेंट, या फिर एक ही क्वेश्चन में एक लाइन हमें बता रहा है जहाँ पे कि टाइम कांस्टेंट होगा और कोई और लाइन बता रहा है जहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, वहाँ पे कुछ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है.
इज दैट पार्ट क्लियर टू यू? ठीक है, सारे क्वेश्चन है, बस यही हम बार बार अप्रोच कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज ऑफिस टू हिज होम and comes back to office by his car, he takes 2 hours and 30 minutes. It would have taken him 50 minutes lesser if he had covered both the distances by car. How long would it have taken him if he had covered both the distances on foot? कितना टाइम लगता if he had covered both the distances on foot? Okay. So the question is saying that the man is walking from his office to his home and then he comes back to office by his car. So one direction तो same है, ठीक है, from office to whom he has walked and then came back from home to office via his car. So distance दोनों ही केसेस में सेम है. So in one direction he is walking, in the other direction he is traveling by a car, and total time taken in this case is 2 hours 30 minutes. Okay, which is 150 minutes basically. Then question is saying it would have taken him 50 minutes lesser if he had covered both the distances by car. जो पोर्शन वॉक किया था अल्टीमेटली देखो, एक पोर्शन तो वॉक किया है, एक पोर्शन कार से गया है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट हाफ बेसिकली फ्रॉम ऑफिस टू होम ही हैज वॉक्ड एंड फ्रॉम होम टू ऑफिस ही हैज ड्रिवन बाय कार. तो सेकंड कंडीशन में व्हेन वी आर सेइंग दैट ही हैड कवर्ड बोथ द डिस्टेंसेस बाय कार, तो क्या हुआ, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको भी कार से ट्रैवल किया है, सेकंड पार्ट तो वैसे भी कार से ट्रैवल किया था. टाइम टेकन इज 50 मिनट्स लेसर. So 150 minutes minus 50 minutes, यानी कि time taken will be 100 minutes. Isn't it so? So if he is driving by car instead of walking, the time taken is 50 minutes lesser. क्या ये बात समझ में आती है? दोनों के बीच का डिफरेंस और तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है. This is the crux of the story. This is the summary. That if he goes by car instead of walking, the time taken is 50 minutes lesser. यही तो क्वेश्चन कह रहा है. तो अगर इसका हम ऑपोजिट कर दें, यानी कि जब वो कार से जा रहा है उसको हम वॉकिंग में कन्वर्ट कर दें, in that case he will be walking both sides. Isn't it so? So in that case he should be taking 50 minutes more time. मतलब तो यही हुआ ना. तो बस 50 मिनट्स का टाइम ऐड कर देंगे, टोटल टाइम हो जाएगा 150 plus 50, that is 200 minutes. If he is walking both sides, the time taken will be 200 minutes, which will be 3 hours and 20 minutes. Option B. Total time taken will be 200 minutes in such a case. Clear? अदरवाइज इक्वेशन बना के सॉल्व तो हो ही रहा है. सॉल्व करना चाहोगे सॉल्व कर सकते हो, बट स्ट्रेट अवे समझ में आएगा तो वर्बली हो गया क्वेश्चन. इज दैट पार्ट क्लियर? स्ट्रेट अवे पता है 2 hours 30 minutes का टाइम लग रहा है व्हेन ही इज वॉकिंग वन साइड एंड गोइंग बाय कार द अदर साइड, बट ही इज टेकिंग 50 minutes लेसर इफ ही इज कवरिंग द बोथ द डिस्टेंसेस बाय कार. तो अगर बोथ द डिस्टेंसेस आर कवर्ड बाय वॉकिंग ऑन फुट, देन दैट केस 50 minutes एक्स्ट्रा लगेंगे. 2 hours 30 minutes प्लस 50 minutes विल बी 3 hours 20 minutes ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वर्षा ट्रेवल्स 3 distances in the ratio 1:2:3 at the speeds of 20, 30 and 40 meter per second. If the total time taken by her is 46 seconds, then we have to find the total distance covered. Okay, there are 3 distances और distances का ratio हमें given है 1:2:3. Additionally, speeds की value भी given है 20, 30 and 40. 20, 30 and 40, these are the values for speed. Total time taken का हमें absolute value given है, that is 46 seconds. तो total distance covered हमें पता लगाना है. ठीक है, one way to solve this question could be, वन अप्रोच कुड बी, स्पीड की वैल्यू तो हमें पता है, लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम लेट डिस्टेंस बी सेम. अगर डिस्टेंस सेम होता 1:2:3 का रेशियो ना होता, डिस्टेंस सेम होता, तब क्या सिनेरियो बनता? स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है हमारा? स्पीड है 20, 30, 40. तो अगर हम डिस्टेंस मान लें, लेट अस से डिस्टेंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दीज 3, तो डिस्टेंस हमारा अगर 120 है, तो इन दैट केस टाइम का रेशियो क्या आएगा? टाइम का रेशियो क्या आएगा? टाइम का रेशियो आएगा 120/20 विच इज 6, 120/30 दैट इज 4 एंड 120/40 दैट इज 3. तो टाइम का रेशियो आएगा 6:4:3. ओके, बट ये रेशियो तब आया है जबकि हमारी डिस्टेंसेस सेम है, बट ये केस तो नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस का रेशियो है 1:2:3. और हमने अभी जो टाइम का रेशियो निकाला है दैट इज फॉर व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम, डिस्टेंस आर इन द रेशियो 1:1:1. तो पहली डिस्टेंस तो हमारी 1 ही है, सेकंड वाली डबल है, डबल द डिस्टेंस है तो टाइम भी डबल हो जाएगा. थर्ड वाली 3 टाइम्स द डिस्टेंस है तो टाइम भी 3 टाइम्स हो जाएगा. तो टाइम का एक्चुअल रेशियो आएगा, ठीक है, ये टाइम का रेशियो है जबकि डिस्टेंस सेम हो, और टाइम का एक्चुअल रेशियो आएगा हमारा 6:8:9. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो वैल्यू क्या आ रहा है टोटल हमारा? 6 + 8 + 9, टोटल आ गया 9 + 8 17 + 6 23 यूनिट्स इज टोटल टाइम. और 23 यूनिट्स टोटल टाइम की वैल्यू गिवन है हमें 46 सेकंड्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेकंड्स.
1 यूनिट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, अब किसी भी एक स्ट्रेच का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस का रेशियो 1:2:3, तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें डिस्टेंस में, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है 6 यूनिट्स है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1 यूनिट डिस्टेंस। और 1 यूनिट डिस्टेंस कितना आएगा, 20 की स्पीड है और टाइम कितना होगा, 6 यूनिट्स टाइम है, और 1 यूनिट टाइम हमारा 2 सेकंड्स के बराबर है, सो दिस विल बी 12 सेकंड्स का टाइम। तो स्पीड है मीटर पर सेकंड में और टाइम भी सेकंड्स में है, तो 20 इंटू 12, तो 6 इंटू 20 इंटू 12 विच इज 6 इंटू 240 विच इज 1440 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 1440 मीटर्स, ऑप्शन बी। क्या है पार्ट क्लियर है? ओके ठीक है, इज दैट क्लियर? हालांकि सेकंड मेथड भी सिमिलर ही है, एग्जैक्टली वहां पे भी हम डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, तो सिमिलर ही है, कोई खास फर्क नहीं है। सेकंड मेथड में भी हम यही करते हैं कि डिस्टेंस एज्यूम करते हैं कोई एक वैल्यू, और डिस्टेंस एज्यूम करके टाइम की वैल्यू निकालते हैं। एक्चुअल टाइम की वैल्यू क्या आती है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है। बट यहाँ पे वैल्यूज इतनी सिंपल है कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा, पर देख लेते हैं एक बार फिर भी। देखो मेथड 2 में क्या करते हैं, वी वुड हैव एज्यूम्ड कि डिस्टेंस हमारा क्या है 20 30 40, ये स्पीड की वैल्यूज है, और डिस्टेंस का रेशियो है 1:2:3। तो वी कुड हैव एज्यूम्ड कि डिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट अस से कि सबसे स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो है 1:2:3। तो 1 यूनिट को हम मान लेते हैं एलसीएम ऑफ 20 30 एंड 40, स्पीड्स का एलसीएम मान लेते हैं, तो 1 यूनिट विल बी 120, 2 यूनिट्स आ जाएगा 240 और 3 यूनिट्स आ जाएगा 360। ओके, सो डिस्टेंस आ गया हमारा 120, 240 एंड 360, एंड स्पीड्स आर गिवन एज 20 30 एंड 40। तो टाइम की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, टाइम विल बी 120/20 6 सेकंड्स, 240/30 8 सेकंड्स, 360/40 9 सेकंड्स, 6 8 एंड 9 सेकंड्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। और टोटल टाइम की वैल्यू क्या आ गया, 6 + 8 + 9 दैट इज 23 सेकंड्स। बट एक्चुअल टाइम हमारा जस्ट डबल है, जस्ट डबल है इसका। सो डिस्टेंस टोटल हमारा विल बी डबल ऑफ दीज डिस्टेंसेस, डबल ऑफ द सम ऑफ दीज वैल्यूज। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे, बिकॉज टाइम भी हमारा जस्ट डबल है, सो एक्चुअल डिस्टेंस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई दीज वैल्यूज। सो दिस इज 2 इंटू 720 विच इज 1440 मीटर्स। ओके ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pankaj travels for 3 stretches of time in the ratio 1:2:3 at speeds of 20, 30 and 40 km/h. If he covers the total distance of 100 kilometers, then find the total time for which he was traveling. So Pankaj is traveling for 3 stretches of time in the ratio 1:2:3. तो अगेन यहाँ पे इस केस में क्या है, पिछले वाले केस में डिस्टेंस का रेशियो गिवन था, इन दिस केस वी नो द रेशियो ऑफ टाइम। So if we assume, let us say to start with, if time is same, so if time is same, तो distance will be proportional to speed, isn't it so? Speed हमारा है 20 30 40, यानी स्पीड का रेशियो है 2:3:4, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही आएगा 2:3:4, या फिर 20 30 40 है, बिकॉज 100 टोटल आ रहा है, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, तो डिस्टेंस का रेशियो आता है 20 30 40। रेशियो में ही मान लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली 100 के इक्विवेलेंट करना है, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ऐसे ही मान के कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर है कि जिससे आसान पड़े वही माने, ठीक है। तो अगर इक्वल टाइम होता है, इफ टाइम वाज सेम, इन दैट केस रेशियो ऑफ डिस्टेंस विल बी 2:3:4, बट टाइम एक्चुअल में है नहीं, ये तो स्टार्ट करने के लिए माना हमने। एक्चुअल टाइम का रेशियो है 1:2:3, इजंट इट सो? तो अगर टाइम हमारा सेकंड सिनेरियो में डबल है, तो डिस्टेंस ट्रैवल भी डबल हो जाएगा। टाइम थर्ड सिनेरियो में 3 टाइम्स है, तो डिस्टेंस ट्रैवल भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्चुअल रेशियो ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, एक्चुअल रेशियो ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा 2:6:12। टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 2 यूनिट्स इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई 20 का स्पीड, बाई 30 का स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 6 यूनिट्स, और 12 यूनिट्स डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाई 40 km/h। तो 2 + 6 + 12 दैट इज 20 यूनिट्स, और 20 यूनिट्स हमारा बराबर है 100 किलोमीटर्स के। 20 यूनिट्स इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। ओके, अब किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेच के लिए, डिस्टेंस के लिए हम टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उससे टोटल टाइम आ जाएगा। सो लेट अस से स्पीड 20 से डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 2 यूनिट्स है, तो 2 × 5 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा, तो स्पीड 20 से ट्रैवल टाइम कितना आ जाएगा,
10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, स्पीड है 20 की, तो 10/20 यानी कि 1/2 आवर्स, और टाइम का रेशियो क्या है 1:2:3 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई, 1 यूनिट इज 1/2 आवर्स, टोटल टाइम है हमारा 1 + 2 + 3 6 यूनिट्स टाइम है, तो टोटल टाइम आ जाएगा 6 × 1/2 आवर विच इज इक्वल टू 3 आवर्स, 3 आवर्स आ जाएगा, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। दो इन सच केस अगर हम टाइम की वैल्यू एज्यूम कर लें तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, कि हम स्ट्रेट अवे मान लेते हैं स्पीड का वैल्यू हमें गिवन है 20, 30 एंड 40 किलोमीटर पर आवर। लेट अस अज्यूम कि टाइम है 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इन द फर्स्ट केस 20 × 2 20 × 1 20, सेकंड केस में 30 × 2 60, थर्ड केस में 14 × 3 120। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा 20 + 60 + 120 दैट इज 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर आ जाएगा। बट एक्चुअल डिस्टेंस हमारा 200 नहीं है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर है, तो जो भी चीज़ हमने एज्यूम किया उसका हाफ हो जाएगा। टोटल टाइम के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा एज्यूम्ड टाइम था 1 + 2 + 3 6 आवर्स, तो टाइम भी जस्ट हाफ हो जाएगा, तो एक्चुअल टाइम विल बी 3 आवर्स। इज दैट पार्ट क्लियर? एक्चुअल टाइम विल बी 3 आवर्स ओनली। ओके, ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो मेक श्योर टू आस्क दैट डाउट। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।